Good evening, everyone. Thank you for joining us today's webinar on how to leverage Message Club Verified WhatsApp to improve business communication and customer engagement. My name is Yukta, and I will be host for today's session. Welcome, everyone, in this webinar. Let's start without any delay. First, let's look at the insights of how much use smartphone users in India. India has over 1 million smartphone users, and the number is still being raised, still being rapidly growing. By 2040, the number is about to reach to 1.55 billion. It is a very, very huge number. If, Now, let's see what is the percentage of WhatsApp base in smartphone users. Then, more than 60% of people on WhatsApp in India message a business account. Means now 60% of people are replying. If anybody who is using a business account and doing the promotion through business account, then 60% of people are replying to their messages and promotional campaigns. Among those, it has been observed that 54% of customers prefer to opt in use customer support services on WhatsApp. Means it is a very 54% is very huge number. Means rather than giving a call for a customer support service, customers are prefer to take what service customer services through WhatsApp only. Means your WhatsApp has a huge potential to take the business to a great height, right? So if the person use the WhatsApp in a very potential way, the he or she can take its business for rapid growth. With this, we are at Message Club. We are the business partners of Meta. Here we provide the service of WhatsApp Verified. At a glance, let's see the core features of WhatsApp verified services. So we provide broadcasting features, bulk campaigning, team inbox, personalized messaging, chatbot, carousel, flow, catalog, shortcut keys, even QR code. You can also manage your order services and lead management through a single platform. Among these features, today we will be discussing few topmost features of this panel. First is BlueTech. Everybody has seen like the renowned brands, जैसे अगर हम अमेजोन की बात करें या मीशो की बात करें, लाइक जब वो लोग प्रमोशनल मैसेजेस सेंड करते हैं तो उनके ब्रांड के पास में एक ब्लू टिक वेरिफिकेशन रहता है। वो एक सिंबल रहता है कि एक ऑथेंटिसिटी का सिंबल रहता है कि जो हम जिस ब्रांड से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक ऑफिशियल नंबर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक स्कैमर और फ्रॉडर नहीं है। तो जस्ट ड्यू टू दिस ब्लू टिक वेरिफिकेशन एक कस्टमर के मन में एक ट्रस्ट बैठता है कि ये ब्रांड ऑफिशियल ब्रांड है, हम ये किस फ्रॉडर से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग ब्लू टिक वेरिफिकेशन का मुझे एडवांटेज मिलता है, इससे हमारा जो कस्टमर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कुछ प्रमोशनल मैसेजेस सेंड करते हैं दिस बाय दिस ब्लू टिक वेरिफिकेशन, तो जो रिस्पॉन्स रेट होता है कस्टमर्स को वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। This is the main advantages feature of this blue tick verification through which you can make your business a brand building business. See, here are some examples. Like this is our only WhatsApp number. Here also we had a blue tick verification page near our brand name or the business name, like Misho also. So once if you take our verified WhatsApp services, your brand will also be get verified through Meta, and this blue page will be appear beside your brand name. Now, what all things you can do with our WhatsApp verified services? So you can send OTP informational messages through WhatsApp. You can maintain the order details, order updates. You can send to customers via WhatsApp only. You can send high rich media document promotional messages at a single platform. And for the customer engagement, you can also send small audio files or video files to keep your customer engaged. By this, what will happen if you like you have a company, right, development company, and you install a new feature in your software, right? So you आप अपनी
फीचर के बारे में एक स्मॉल क्लिप दे सकते हैं कस्टमर को, ताकि आप उनके साथ एंगेज रहें, उनके माइंड में आपकी ब्रांड इमेज बैठी रहे, जिससे क्या? हाँ। आपकी इमेज में ब्रांड इमेज रहेगी. Now here is the video. We sign up the panel. Then we created broadcast template. Then we create template show. So we will be selecting the custom option. Then to give the name to our. I have I have written the already text at my documents. So I have copied it here. So in the previous slide, we saw that how beautifully we can create a broadcast template. It is just easy to use broadcast template. Meta has covered every requirement of business and created the beautiful interactive template to interact with their customers. So we have two types of template. Or the broad way, we have two type of template. Broadcast. One message are those which we broadcast. That is a single click, we can send message to thousands of customers, right? So in that, by creating a broadcast message, we need a broadcast template, which we saw in previous slide. For this, after creating the broadcast template, we need to take approval from Meta. After the Meta give the approval to our template, then only we can use that template for our broadcast message. And one is chat template. See, for example, I shoot a video, I shoot a bulk campaign to my thousand of clients, right? And from those, I got responses from 200 clients. So that 200 clients chat will be visible in my chat section. But then I can chat with those one to one. I can initiate one to one communication with those responses through my chat panel. But we can also initiate message manually by typing. Even we have the beautiful option of chat template, where we can create a chat template and we can use it multiple and frequent times whenever we interact with the customer. The main difference is in broadcast template, we need approval from Meta after creating the template. But in chat template, we don't need any approval. We can create the chat template and we can use it without the approval. These are the points to remember of that we can just we do have a feature of automated responses. Once we can create the template, right? And if we want to use automate, means we are dealing with a complex queries daily, right? But for daily routine queries, we can automate the chat responses. So once we can generate that, and we can use that for multiple options, right? We can through broadcast broadcast through broadcast feature, we can send thousands of customers a message through a single click. We can also use rich media, images, videos, PDFs to interact with our clients.
Like we do have options like CTA, that is click to actions buttons or reply buttons. Quick reply buttons are mainly used when we send a promotional message, right? And we want that customer should not block or spam us. So we can ask that you are interested in this promotional messages or not. So you can, if just we simply click yes, so we can store that data, and for further use we can use data for further campaigns, right? We can also send non-transitional messages like discounts, offers. We can also give this packing stock alerts through WhatsApp only. And the most usable feature is that we can monitor the campaign performance. Means if we send 3 4 messages, promotional messages, right, and we want to see that what is which campaign is getting the maximum responses from the customer, so we can also see that through our report delivery feature. Now personalized messaging, this is a most interactive feature that is used by every renowned brand. Like suppose I do have a e-commerce business, right? Then let us take an example of Amazon only. See, I purchased a dress prior a month, right? Then if there is a discount on that my purchase going right now, so what Amazon does, कि hey Yukta, आपने in this month you purchase this, and we are having offers on these things. So if you want to purchase, you can purchase in a discounted price. So this means वो हमारे नाम के साथ में, हमारे प्रेफरेंस के साथ में हम मैसेज भेज रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, तो उससे क्या होता है कि हमारे उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है, राइट? क्लाइंट या कस्टमर को लगता है कि यार इन्हें हमारे प्रेफरेंस याद है, और उस बेसिस पे हम लोग उनको डिस्काउंट ऑफर सेंड कर सकते हैं, और पर्सनलाइज मैसेज सेंड करते हैं, इवन ग्रीटिंग सेंड कर सकते हैं Yeah. हमारे Yes. हमारे Yes. कस्टमर्स को. So this is the benefits of personalized messaging. Now ते मी तुम्हाला तर काय लगेच कॉल करून सांगायचं मुंबईमध्ये आहे तुम्हाला नंतर फोन करतो की sorry. नाही नाही पॉसिबलच नाही मला थोडा टाइम द्या आता जस्ट मुंबईमध्ये आहे मी जर सडनली मला यावं लागलंय मी तुम्हाला उद्या कोल्हापूरला Excuse me, फोन sir. करतो Now our next slide is carousel template. कारण In थोडा this, टाइम द्या मी तुम्हाला कॉल बॅक करतो if you want to ओके ओके मला broadcast, थोडा टाइम मी आता मुंबईमध्ये आहे तुम्हाला कोल्हापूरला कॉल करतो येस excuse me, sir. Now carousel template. Suppose I have my jewelry business, right? Then of now I got new designs on my jewelries. Now I need to broadcast that message. Through a carousel, I can create an interactive template. See in the on the image that is best left side, in which first I can write the detail about my designs, and then down I can add the products like new designs with their description, and I can also add attractive click to action buttons through which a customer can directly contact me through that carousel templates. Here can see how can create a carousel template.
102.4. Here are the examples of carousel that are created. See this. It was a jewelry business. We created a carousel for a jewelry business. First, we created a message, a broadcast message. Then down, we created add the card. And a single message, we can add 10, maximum 10 cards to promote our services. See, this was the carousel for jewelry business, and this was the carousel for saree business. Now flow. We've everyone seen that. बहुत बार हमें मैसेज आते हैं कि just we went on some of the website, right, and we click there for we need services or we need to inquire more. So then they send us the inquiry form on WhatsApp. But जब हम लोग वो WhatsApp ये के लिंक दूसरा पे जिसका माइक चालू है बंद कर दे तो डिस्टर्ब ना हो। give me a second, just a second. Give me just a second. I'm so sorry for the inconvenience that faced just due to that unmute of my. Now we were talking about the flow. It is very exclusive feature. Like in this example, we see that it is a e-commerce website saying that if you want notification in advance notification for our services, so you can fill this form.
When the user clicks on shop now, the form will be appear on the WhatsApp only. But what actually we receive, like many of times, अगर suppose और मैंने अगर मुझे कोई रिसीव हुआ है, राइट, एंड द पर्सन और द बिजनेस इज नॉट यूजिंग द वेरीफाइड व्हाट्सएप सर्विसेज, तो व्हाट हैपेंस, जब वो मैसेज मुझे सेंड करते हैं, अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूँ तो मुझे रीडायरेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे टू फिल दी फॉर्म। तो इससे यूजर इंटरेक्शन लो हो जाता है, बिकॉज हम यूजर को थर्ड पार्टी साइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, देन उससे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन वो वापस आएगा व्हाट्सएप पे, देन थैंक यू मैसेज आएगा उसे। बट व्हाट्सएप वेरीफाइड सर्विसेज में ऑन द स्पॉट ऑन द व्हाट्सएप ओनली द यूजर विल बी फिलिंग द फॉर्म, and then after filling the form, as soon as he or she will be getting the thank you message, the thank you for signing up with us. This is the amazing feature of WhatsApp verified services. These are the examples. Like in this example, for register now for the notification, so the candidate filled the form and she got the WhatsApp thank you message over the WhatsApp only. He was not redirected over the third party platform. On the WhatsApp only everything happened. And this also, like, I want to book a table. So just I initiated a message, I want to book a table, and then I automatically through WhatsApp bot, I got a form to book to write the details and book your table on WhatsApp only. This is what the amazing advantage of Flow is. Now message team club chat. We do have a chat panel. See, once when we shoot a broadcast message and when we receive responses from any of the customer, then it is appear in the chat section. जैसे ही हमें chat section में appear होती है, तो हम चाहे वो admin हो, हम फिर हमें एक option होता है agent का, like मैं employee मतलब owner हूँ, तो it is not possible जैसे सात दो 200 कस्टमर्स को एक साथ रिप्लाई करना, इट इज नॉट पॉसिबल, तो देयर माइट बी डिले, एंड डिले के कारण क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस डिक्रीज होता है, विच इज नॉट गुड फॉर कंपनी। सो वी डू हैव ऑप्शन ऑफ एजेंट, राइट। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में सपोर्ट वाले हैं, सेल्स वाले हैं, तो मैं मेरे बिहाफ पे वो लोग चैट कर सकते हैं कस्टमर के साथ वेन एवर दे आर अवेलेबल। लाइक अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे बिहाफ पे वो लोग चैट कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ इंटरेक्शन डिले नहीं होगा, तो हम वो मैनेज कर सकते हैं। हम एक ही जगह पे स्टेटस अपडेट कर सकते हैं कस्टमर्स को, लाइक कि ऑर्डर आपका यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक डिलीवर हो जाए, तो हम डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू ये कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, लाइक जैसे अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, जैसे उसने कहा आई वांट टू बुक अ टेबल, उसको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स फॉर्म आ गया जिसमें वो अपनी डिटेल फिल करेगा एंड वो ऑन दी टेबल ऑन दी स्पॉट अपनी टेबल बुक कर सकता है। एंड इंटीग्रेशन विद सीआरएम इज लाइक वी डू हैव टू ऑप्शंस, लाइक आप हमारे एक पैनल भी यूज करते हैं सर्विसेज लेने के लिए, या तो आपका एक खुद का सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है और आपको हमारी एपीआई सी के हमें हमारे सॉफ्टवेयर में उसको इंटीग्रेट करना है, आपका पैनल यूज नहीं करना, तो वी हैव द अमेजिंग फीचर ऑफ एपीआईज ऑल्सो। हमने सब बिजनेस के हिसाब से पूरी एपीआईज डेवलप ऑलरेडी कर रखी हैं, जिसको आप सिर्फ उठा के अपने सिस्टम में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट एनी difficult process. So this is what the Teambox feature is. Now team management, as I talked about agent, कि जैसे अगर मैं बिजी हूँ तो कस्टमर डिले ना हो उसके कारण मैंने एजेंट असाइन कर लिए, तो उसके हिसाब से हर एक बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम किस बेसिस पे एजेंट असाइन कर सकते हैं, हमारे पास 5 चीजें हैं। ठीक है, एक ऑटो असाइनमेंट। ऑटो असाइनमेंट कैसा होता है कि जैसे अगर एक चैट आई, मैंने ऐसा ऑटो असाइनमेंट, मैं जैसे एडमिन हूँ उसकी पैनल की, तो मैंने एक ऑटो असाइनमेंट चैनल ले रखा है, जैसे अगर कुछ भी चैट आई जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ में, वो हर एक एजेंट को डिवाइड होती है कि जिसमें उन दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी या मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं होती, जैसे फर्स्ट चेक फर्स्ट एजेंट को, सेकंड चेक सेकंड एजेंट को, राइट। कुछ ऐसे कंपनीज रहती है कि जिसमें एक्सपर्टीज नीडेड रहती है, तो अब जैसे सीआरएम वाली कंपनी है, राइट, अब उसको एक्सपर्टीज नीडेड है कि उसमें सब टेक्निकल इश्यूज वाले ही आएंगे, तो अब हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, हम उनको वो पूरी जो हमारी चैट्स आएंगी टेक्निकल से रिलेटेड, हम वो पूरी टेक्निकल टीम को दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड फीचर। Most important and the upgraded feature is phone book feature, which is actually not provided by everyone. Suppose मेरी ई कॉमर्स कंपनी है और मैंने लास्ट टाइम पे फेसबुक पे ऐड चलाया था, और वो ऐड एक अच्छे अमाउंट वाले प्रोडक्ट का था जिसका अमाउंट यूज था, और मुझे उसमें बहुत सारी लीड्स आई थी, अच्छी लीड्स आई थी। ठीक है, अब मुझे वो लीड चाहिए, मुझे वो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो मुझे एक फोन बुक ग्रुप में आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि नाम से कि मैंने ये लिंक्डइन ऐड पे फेसबुक पे ये ऐड चलाया था और उसकी ये लीड्स है,
तो हम वो लीड्स को एक एक्सपर्टीज पर्सन को असाइन कर सकते हैं ताकि उससे हमें कन्वर्जन मिल सके. दिस इज द मोस्ट अपडेटेड फीचर फोन बुक विच एवरीवन इज नीडिंग राइट नाउ. So this is all about the team management under the agent management. Now customer support. Now we talked about chatbot responses. Like what? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ जैसे अमेजोन का. अब अमेजोन में इट इज अ वेरी ह्यूज ह्यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म राइट. उनके पास मल्टीपल क्वेरीज रहती हैं, इवन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, डेली रूटीन ऑल्सो. तो उन्होंने खुद का चैटबॉट क्रिएट कर रखा है. ठीक है. जिससे जैसे अगर कस्टमर ने कैंसिल ऑर्डर की, कुछ रिक्वेस्ट डाली, तो एक एजेंट को अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फॉर सच क्वेरीज. उनने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लगा के अगर कैंसिलेशन के लिए तो ये चैट उनको इनिशिएट हो जाएगी और कैंसिलेशन प्रोसेस वो थ्रू चैटबॉट कर सकता है. तो उससे क्या होगा, उनकी 75% क्वेरीज ऑटोमेट अपने आप होने लग जाएंगी. ठीक है. उनकी क्वेरीज 3 टाइम्स जल्दी हो जाएंगी और एजेंट का बर्डन नहीं रहेगा उस चीज का. एजेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे ध्यान दे सकता है. जो रूटीन क्वेरीज है, रूटीन वाली क्वेरीज है, वो चैटबॉट खुद अपने आप संभाले. तो इससे आपका ऑपरेशनल फ्लो भी सीमलेस चलता रहेगा और कस्टमर एंगेजमेंट भी रेट बढ़ते जाएगा. दिस इज व्हाट वी टॉक. जो हमने चैटबॉट की बात करी वो इन सब बेसिस पर चलती है. सपोज हम जब चैटबॉट क्रिएट करता है तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं राइट. जैसे कंटेंट बेस्ड लिखता है, जैसे हमने कुछ कंटेंट है कि ये कंटेंट अगर आएगा तो ये वाली चैटबॉट इनिशिएट होनी चाहिए, तो हम कंटेंट बेस्ड चैटबॉट इनिशिएट कर सकते हैं. या किसी कस्टमर को टेम्पलेट भेजा कि आपने पहले ये टेम्पलेट भेजा था मुझे, अब मुझे इसके लिए रिप्लाई चाहिए, तो हम वो टेम्पलेट बेस्ड चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं. हम चैट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे हम आफ्टर ब्रॉडकास्ट हमने मैसेज सेंड किया, फिर जो कस्टमर का रिप्लाई आया राइट, तो कस्टमर को हम लोग नॉर्मल जैसे उसने प्राइस पूछा मान के, मतलब कोई सर्विसेज थी उसकी प्राइस पूछी, तो ऑटोमेटिक चैट टेम्पलेट चैटबॉट के थ्रू ट्रिगर हो जाएगा कि दिस इज आवर प्राइस. तो हम वो कर सकते हैं. व्हाट्सएप टेम्पलेट दे सकते हैं जिसके लिए हम चैटबॉट यूज कर सकते हैं. और वेबबुक उसके लिए है जो हमारी सर्विसेज इंटीग्रेट करेंगे. हु इज नॉट यूजिंग आवर पैनल, जो हमारी सर्विसेज इंटीग्रेट करेंगे उनके लिए वेबबुक फीचर होता है फॉर चैट, जिसमें वो चैट बोर्ड की एपीआई इनिशिएट करते हैं. और एक ऑप्शन आता है एनेबल डिसेबल बोर्ड. जब अगर हमको यूज में नहीं है वो बोर्ड, हम उसको एनेबल कर सकते हैं और जब भी हम उसका यूज लेंगे तो हम वही चैट को वापस डिसेबल एनेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. नाउ कैटलॉग. इट इज द अमेजिंग फीचर इन विच अगर हम एक सिंपल हमारे व्हाट्सएप चैटिंग प्लेटफॉर्म को हम एक ई कॉमर्स बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें क्या हो सकता है, व्हाट्सएप पे ऐसी अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स हैं जिसके थ्रू हम कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं. और ऑन व्हाट्सएप ओनली हम व्हाट्सएप पे ही परचेस जर्नी कंप्लीट करवा सकते हैं ताकि कस्टमर्स को अदर साइट पे प्लेटफॉर्म्स पे रिडायरेक्ट ना होना पड़े प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. तो दिस इज व्हाट अ कैटलॉग टेम्पलेट एंड फीचर इज. वी डू हैव टू. लाइक हमारा कोई सिंगल प्रोडक्ट है, हमने उसी के लिए ब्रॉडकास्टिंग या टेम्पलेट क्रिएट किया, तो उसमें सिंगल कैटलॉग इमेज और सिंगल मैसेज ही जाएगा, ट्रिगर होगा. एंड वी हैव मल्टीपल, जिसमें अच्छा हम लोग सिलेक्ट इस मैसेज को इनिशिएट करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट मैसेज कैटलॉग को, उसमें हम अंडर 30 सिलेक्शंस कर सकते हैं. जो कस्टमर है वो 30 इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है एंड ऑन व्हाट्सएप ओनली ही और शी कैन डू हिज ऑर्डर प्रोसेस. हियर आर द एग्जांपल्स. लाइक जैसे ग्रीन वैली है. नाउ ग्रीन वैली ने एक कैटलॉग ब्रॉडकास्टिंग किया. अब व्यू, जब व्यू कैटलॉग पे जैसे ये थंबनेल है, जो इमेज लगा दैट इज द थंबनेल ऑफ द कैटलॉग टेम्पलेट. हियर इज द बॉडी टेम्पलेट व्हिच विल डिस्क्राइब अबाउट द कैटलॉग वी शेयर एंड द कैटलॉग बटन. जैसे ही कस्टमर ने व्यू कैटलॉग पे क्लिक किया तो उसको ये मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस का मैसेज है राइट. तो इसमें उसको सब जो भी कैटलॉग में इमेजेस और जो प्रोडक्ट्स ऐड थे वो कर सकता है. नाउ हियर ओनली ही कैन और शी कैन ऐड टू कार्ट एंड do the order, do the purchase from WhatsApp only. Now WhatsApp delivery for food services. Suppose जैसे आपका कोई फूड बिजनेस है एंड यू हैव अ वेबसाइट राइट. अब वो जो जिसी को ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर आपको उसने ऑर्डर किया, फिर आपको व्हाट्सएप से ट्रिगर हुआ, फिर आपको अलर्ट आया, फिर आपने वो देखा एंड उसको ऑर्डर कंफर्मेशन फिर उसके पास गया. एंड दिस एवरीथिंग यू कैन डू जस्ट एट व्हाट्सएप ओनली because right now it present you, we and everyone are active on WhatsApp. Multiple time हम लोग इसमें WhatsApp चेक करते हैं किसका मैसेज आया किसका मैसेज नहीं आया. तो WhatsApp एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर आवर बिजनेस टू गेट मोर कस्टमर एंगेजमेंट.
सो फूड डिलीवरी सर्विसेज में कैसे कर सकते हैं कि हम लोग हमारे व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर आया, उसने व्हाट्सएप पे हाई लिखा, तो हम डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू ही उसको मेन्यू शेयर कर देंगे। मेन्यू शेयर करने के बाद उसने अपना जो रिक्वायरमेंट है, जो फूड रिक्वायरमेंट है, उसने सिलेक्ट किया एंड व्हाट्सएप के थ्रू ही उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। एंड उसको पूरी अपडेट व्हाट्सएप के थ्रू आ रही है कि आपका हमें मतलब रिसीव हो गया आपका ऑर्डर, आपका अंडर प्रोसेस है, आपका डिलीवर हो गया, आपका डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी हो गई। एवरी प्रोसेस ऑफ ऑर्डर बाय प्लेस फ्रॉम प्लेसिंग द ऑर्डर टू कंप्लीशन द ऑर्डर, आप पूरा मैनेजमेंट व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द व्हाट्सएप एपीआई फॉर फूड डिलीवरी सर्विसेज। So what are the actually benefits of WhatsApp API services? Even like अगर आप ऑफलाइन हैं और आपके कोई क्लाइंट ने मैसेज किया, अब आप तो ऑफलाइन, आप तो आफ्टर योर बिजनेस आवर किसी क्लाइंट ने करा है मैसेज, तो थ्रू दी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आप आपके क्लाइंट को रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा विदाउट एनी डिले। आप इंटरेक्टिव पीडीएफ इमेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप लीड जनरेशन कर सकते हैं थ्रू दिस व्हाट्सएप एपीआई सर्विस। So yeah, here we are at the end of the webinar. We are open for any FAQ, if any. किसको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वेबिनार को लेके, हमारी सर्विसेज को लेके, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, तो वी आर ओपन टू आंसर। यस सर। मैडम इसमें जैसे चार्जेस जैसे आपका है ईयरली, इसके अलावा जो मेटा के चार्जेस है, उसमें मतलब जैसे आप ईयरली चार्जेस में उसमें कुछ मैसेजेस वगैरह फ्री मिलते हैं कि मेटा से कुछ उसको भी पे करना पड़ता है? सॉरी सर, आपका कंसर्न थोड़ा सा क्लियर नहीं था, कैन यू प्लीज एलाबोरेट इट? हाँ हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने को ईयरली चार्जेस इस प्लेटफॉर्म का देना पड़ेगा, या और उसके बाद जो है इसमें मेटा के भी जो चार्जेस रहते होंगे। अभिनव सर, आर यू ऑन द मीट? Yes, sir. क्या बोले? यस Yes, sir. Yes, sir. सर I'm इज, in the meeting. या सर इज तो एक्चुअली जैसे आप आस्किंग दिस कि जैसे हम लोग जो ईयरली प्लान देते हैं, अगर सर तो पेमेंट कर रहे हैं ईयरली, राइट? तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मेटा के चार्जेस रहते हैं क्या इसके साथ में? यस सर, तो सर दो तरीके से चार्जेस लगते हैं एक्चुअली। एक तो जो प्लेटफॉर्म आप लेते हैं, जब आप प्लेटफॉर्म लेंगे ठीक है, तो आपको लाइक ईयरली अगर आपने प्लेटफॉर्म लिया तो उसमें कुछ रिक्वेस्टेड होती है जो आपको परचेस मिलती है उसके अंदर, लाइक 1 लाख 2 लाख जो भी है as per the plan. Fine. And after platform, whenever you send any SMS, any broadcast SMS, तो उसमें जो मेटा का चार्जेस रहता है वो डिडक्ट होता है सर। लाइक अगर आप मार्केटिंग एसएमएस अगर सेंड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो अभी फिलहाल जो मेटा का चार्जेस है ठीक है, वो 78 पैसा समथिंग है। सो वो माइनस होगा डायरेक्टली आपके मेटा से, जहाँ पे आपका कार्ड कनेक्ट होगा। एंड अगर आप यूटिलिटी या फिर ऑथेंटिकेशन अगर आप साइन करते हैं, तो उस केस में जो उनका चार्जेस रहता है वो मेटा से डायरेक्टली आपके आपके कार्ड के थ्रू डायरेक्ट होगा सर। राइट, और उसमें तो ये वो रहेगा। ऑटो ऑटो हम्म। आइडेंटिफाई करता है कि यूटिलिटी का है या मार्केटिंग का है, हाँ कैसा? सर, इसमें क्या होता है कि जब आप टेम्पलेट अप्रूव करवाते हैं आप ठीक है मेटा पे, तो वहाँ पे आपको क्या है कि जब आप टेम्पलेट अप्रूव करवाने के लिए जाएंगे हमारे हमारे पैनल से, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको जो टेम्पलेट है मार्केटिंग में अप्रूव करवाना है, यूटिलिटी या ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। एंड सपोज अगर आप मार्केटिंग का टेम्पलेट अगर आप यूटिलिटी में अप्रूव करवाने जाएंगे ठीक है, तो वो मेटा जो है आपका एसएमएस कैंसिल कर देंगे। राइट। तो हम्म। हम्म। आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा पैनल पे कि आपको किस अकाउंट से जो है आपको किस वे में आपको टेम्पलेट अप्रूव करवाना। अगर मार्केटिंग है तो वो मार्केटिंग में ही अप्रूव होगा, यूटिलिटी है तो यूटिलिटी में ही अप्रूव होगा। और उसी के अकॉर्डिंग जब आप साइन करेंगे तो आपका जो डिडक्शन है वो मेटा से होगा, और डिडक्शन भी सिर्फ रीड एंड जो डिलीवर्ड एसएमएस होते हैं उन्हीं का होगा। अगर सपोज आपने कोई कैंपेन किया है एंड उसमें सपोज आपके 5,000 आपने कैंपेन किया, उसमें से 3,000 या 4,000 आपके एसएमएस जो है डिलीवर हुए हैं यूजर को, तो आपको सिर्फ उन्हीं का ही चार्जेस जो है मेटा पे और मैसेज क्लब पे लगेगा। फाइन। बाकी अगर जो आपके जो एसएमएस फेल्ड हुए हैं उसका कोई भी चार्जेस जो है वो इंक्लूड नहीं होगा दोनों ही केस में।
ओके, और जो ओटीपी वगैरह रहता है वो किसमें, मार्केटिंग में आते हैं कि यूटिलिटी में आ जाते हैं सर सर? ओटीपी मार्केट मेरे जो, पास। या ओटीपी जो है सर वो ऑथेंटिकेशन में आएगा। ठीक है, ओटीपी के लिए अलग ही सेक्शन है वहाँ पे, वो ऑथेंटिकेशन का है। वहाँ पे जाके आप ओटीपी अप्रूव करवा सकते हैं आपका। तो वो इससे 78 पैसे मतलब जो मेटा वाला हम्म। वो आता है कि ये यूटिलिटी में आता है सर वो, सर कि ये जो उसका है, अलग से है? हाँ नहीं नहीं, देखिए जो प्राइसिंग है फिलहाल, अगर आप यूटिलिटी या ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट अगर आप सेंड करते हैं तो मेटा पे 12 पैसा जो है उसका चार्जेस लगता है, और जब भी आप एसएमएस सेंड करेंगे, राइट। एंड अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो 78 पैसा। ठीक। यस सर। थैंक यू। या और कोई डाउट सर किसी को? मौलिक Yes. सर ने रेस किया या हम्म। सो जो आपने बोला कि ओटीपी और मार्केटिंग मैसेजेस है, अगर हम्म। वो आपके प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे या आपकी एपीआई थ्रू जाए हम्म। तो ही पैसा लगेगा। जैसे सपोज कि मैं सेम मैसेज को भी पेश करके किसी कस्टमर को भेजता हूँ हम्म। तो उसका चार्जेस एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सर राइट? देखिए, इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि जब भी आपको एसएमएस सेंड कर रहे हैं, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आप कोई एसएमएस किसी यूजर को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है अगर आपका टेम्पलेट मार्केटिंग का होगा तो नहीं मार्केटिंग के अकॉर्डिंग नहीं, आपका मैं ऐसा चार्जेस पूछ होगा रहा सर। हूँ कि अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म थ्रू नहीं या। जाता, मैन्युअली हम्म। एज अ व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, उसके हाँ थ्रू हाँ। मैं मैसेज करता हूँ ओटीपी के लिए या कोई मार्केटिंग मैसेजेस, तो वो हम्म। चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे आपके प्लेटफॉर्म पे अ, या? मैं समझ गया, क्योंकि लाइक जैसे जब भी आप सर वेरीफाई व्हाट्सएप की सर्विस में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो हम्म, इसमें एक रहेगा कि जो आपका व्हाट्सएप रहेगा ना, जो अभी फिलहाल हम मोबाइल पे जो व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, वो वाला हम्म, व्हाट्सएप आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जी, आप वेरीफाई व्हाट्सएप में जाएंगे तो वो वाला व्हाट्सएप आपका हो जाएगा डिलीट, एंड आपको यहाँ से ही आपको एसएमएस सेंड करने पड़ेंगे। तो आप किसी भी तरीके से मोबाइल से जैसा भी आप सेंड कर पा रहे हैं वन टू वन यूजर को, वैसे नहीं सेंड कर पाएंगे। आपको थ्रू पैनल ही सेंड करना पड़ेगा, थ्रू एपीआई, जो कि हमारे पैनल के थ्रू ही जाएगा, या फिर आप पैनल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, या तो ब्रॉडकास्टिंग या फिर चैट एसएमएस के थ्रू, वो भी पैनल के थ्रू ही होगा सर। इज इट कंपलसरी कि मोबाइल से एप्लीकेशन वो डिलीट कर दे? ये सर कंपलसरी है। अगर आप, आपका जो भी नंबर आपको वेरीफाई करवाना है, हम्म, उस पे सिर्फ जो एक मेटा प्रोसेस है, ठीक है, हम्म, एम्बेडेड के थ्रू ही वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा। अदर जो मोबाइल से आप चला रहे हैं व्हाट्सअप, वो परमानेंटली डिलीट करना होगा। ओके। और यस सर। जैसे ही मैं आपका प्लान लेता हूँ, हम्म। अप्रूवल हो चुका है, प्रोसेस हो गई, उसके हम्म। बाद तुरंत ही मुझे ब्लूटिक आ जाएगी या कोई प्रोसेस है ब्लूटिक के लिए कोई सर अलग से? ब्लूटिक के लिए भी प्रोसेस है उसमें, राइट। लाइक जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब आप मेटा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हम्म, आप अगर विदाउट बिजनेस वेरीफाई के अगर कनेक्ट होते हैं तो उसमें आपको लिमिट मिलती है 250 की, राइट, जिसमें आप 250 एसएमएस सेंड कर हम्म, सकते हैं। जिसमें जिसमें जो एसएमएस है वो आपका जो है नंबर से जाएगा यूजर के पास में। देन अगर आप सेकेंड जो स्टेप होती है उसमें होता है कि आपका जो 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 मेटा अकाउंट है वो वेरीफाई होता है, जिसमें आपका जो एसएमएस है, आपका हम्म, जो ब्रांड नेम होता है, ठीक है, उसके थ्रू जाएगा। जी, ठीक है। एंड उसके बाद में जब आप कंटिन्यू आप जब एसएमएस सेंड करते हैं तो एक्चुअली जो मेटा की टीम है, वो आपका जो अकाउंट है ना, वो ऑटोमेटिक हम्म, जो उनका प्रोसेस है उसके थ्रू चेक होता है कि आपका आपका अकाउंट की क्वालिटी क्या है, आप किस टाइप का एसएमएस सेंड कर रहे हैं, एंड किस टाइप का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेटा के प्लेटफॉर्म में ही आपको एक ऑप्शन है वो इनेबल होता है, जिसके थ्रू आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके। उसका कोई चार्जेस अलग नहीं से उसका, नहीं लगेगा नहीं या? उसका कोई चार्जेस नहीं है, वो सब इंक्लूडेड ही रहता है सर। ओके, उसका कोई और अलग से कितने चार्जेस नहीं है। एसएमएस के बाद वो ऑप्शन इनेबल है, ऐसा कोई काउंट है या? नहीं, ऐसा कुछ काउंट नहीं है कि कितना एसएमएस सेंड करना चाहिए, बट ये है कि आपका जो जो कंजप्शन है वो डेली कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो मेटा अकाउंट है उसकी जो रेटिंग होती है मेटा पे, ठीक है, वो अच्छी होना हम्म, चाहिए, वो गुड होनी चाहिए। तो आपको मिल जाता है, मतलब यूजली जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो यही है कि आपको जो ऑप्शन है वो 5 डे में भी इनेबल होता है, 15 डे में भी इनेबल होता है, 1 मंथ में भी होता है, 2 मंथ में भी होता है, डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन के क्वालिटी पे डिपेंड करता है सर। ओके, एंड उसके बाद में भी जब आप ब्लूटूथ के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम्म, आपको कुछ जेन्युइन जो पब्लिशर होते हैं, वहाँ पे अगर आपका जो भी ब्रांड है वो हम्म, अगर नॉन है, उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो जब आप ब्लूटूथ के हम्म, लिए जब आप ग्रीन टिक के लिए जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे डालनी होती है। एंड फिर आप वो जब डालते हैं तो मेटा अपनी साइड से चेक करते हैं
कि जो आपने डिटेल डाली है वहाँ पे, आर्टिकल और ये सब जो डाला है, वो कैसा है, एप्लीकेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो आपको ब्लूटूथ मिल जाता है सर, अगर नहीं है तो फिर वो आपको सेकंड ट्राई करने के लिए बोलते हैं विद द करेक्शन। हेलो। में आपकी टीम हेल्प करेगी या? ये तो आपको सर, आपका जो जब मेटा अकाउंट बनता है वहाँ पे बकायदा ईमेल आईडी जो रहता है आपका, वहाँ पे आपके पास अपडेट आ जाता है। ओके हेलो ओके। सर। ये सर। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो फॉर्मेलिटी है ब्लू टिक की, ये या कहाँ पे विजिबल होती है? सर, ये आपको मेटा अकाउंट में ही होगी, लाइक जब आपका मेटा अकाउंट बनता है तो वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, प्रोफाइल में आपको वो ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं सर। नहीं सर, मतलब जैसे अभी अभी हमको कैसा है, प्लेटफॉर्म तो मैसेज क्लब का है, तो ठीक है। उसमें उसमें तो नहीं होगा ना शो? नहीं, आपको मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म पे शो नहीं होगा, आपको जो आपका मेटा अकाउंट होगा फेसबुक पे, राइट, वहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है सर, वहां वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन एनेबल होता है। तो ये तो सर, जैसे अभी हमारा एक नया सिम लिया है, और हम्म। वो सिम का प्रोफाइल वगैरह तो हमने कुछ चेक नहीं किया कि कुछ प्रोफाइल बना है कि नहीं है बना है। नहीं, एक्चुअली आपने जो सिम लिया है ना सर, ठीक है, आपने जो हाँ नया सिम लिया है उसके थ्रू आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे मेटा पे, राइट, उसमें क्या आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा व्हाट्सएप का, आपके फेसबुक का जो मेटा मेटा अकाउंट बनता है उसके हाँ। अंदर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। मतलब आप मोबाइल से अपडेट नहीं कर पाएंगे, आपको फेसबुक ओपन करना पड़ेगा, देन आपको मेटा में जाना पड़ेगा, देन प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आपको ये सारी चीजें अपडेट करनी होगी। यानी वैसे हम्म, मोबाइल पे नहीं, यानी ये कहाँ पे, यानी जैसे अपन लॉगिन करते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप पे हो गया, तो उस पे फेसबुक जैसे लॉगिन करते हैं, तो जी। वैसे इसमें नंबर सिम डाल के ऐसा कुछ करना होगा क्या नहीं नहीं लॉगिन नहीं नहीं कर? नहीं। हाँ आपको नंबर नहीं डालना है, आपको नॉर्मली आपका फेसबुक अकाउंट ओपन करना है, एंड हाँ वहाँ पे आपको जो पेज रहता है, पेज के वहाँ पे सर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मेटा अकाउंट में जा सकते हैं। आप जैसे ही मेटा अकाउंट में जाते हैं, उसमें नंबर का कोई काम नहीं है कि आपको नंबर डालना पड़ेगा, एक नॉर्मल जैसा आपका फेसबुक अकाउंट रहता है वैसा मेटा अकाउंट रहता है। एंड वहीं पे एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल का, जहाँ पे आपकी चीजें अपडेट होती है। तो वहीं पर ही आपको शो, वहाँ पे वहीं पर आपको शो हो जाता है। इसके लिए बाकायदा अपने पास में टीम है वेरीफाई व्हाट्सएप की, हाँ हाँ, वही मैं वो आपकी थोड़ा हेल्प गाइड करती है कर हर देंगे। तरीके। आपको कोई भी डाउट होगा सर, ठीक है, तो हाँ टीम अवेलेबल है, ठीक है, हाँ। आप कनेक्ट कर सकते हैं, टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी सर उसमें। अच्छा सर, एक मुझे थोड़ा पूछना था कि इसके कुछ थोड़ा आप सैंपल्स टीम भेज सकते हैं क्या? जैसे अपना ऑथेंटिकेशन का है, मार्केटिंग का है, जो कैटेगरीज है, तो हम्म। मार्केटिंग तो हम एक एड एजेंसी है, तो मार्केटिंग के मैसेज तो ऑफर डिस्काउंट से लिए तो हमको यस। तुरंत पता चल जाते हैं। फाइन। लेकिन जो एक यूटिलिटी कैटेगरी है, तो उसमें हम्म। कौन से मैसेजेस आते हैं वगैरह, तो ये इसके ऐसे कुछ सैंपल्स टीम के द्वारा मिल सकते हैं क्या हमको? हम्म। ठीक है, जो भी आपके अकाउंट मैनेजर हैं, ठीक है, वो हाँ आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको हाँ जो सैंपल्स है वो मिल जाएंगे। बाकी नॉर्मली अगर आप उसको ऐसे समझें, ठीक है, कि जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है, जब आप कोई टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं एंड वहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो एसएमएस है जाना जरूरी यूजर के पास में, लाइक जैसे सपोज ओटीपी एसएमएस जाना जरूरी है, या अगर कोई यूजर आपसे प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं तो उनको बिलिंग जो है वो जाना जरूरी है, ठीक है। तो हम्म, ऐसे जो एसएमएस होंगे, ठीक है, जो कि यूजर को साइन करना जरूरी होता है, स्कूल के हो गए, राइट, अटेंडेंस के हो हाँ गए, इस टाइप ये जो कैटेगरी होती है, ठीक है, ये कैटेगरी आएगी आपकी यूटिलिटी में, राइट, कि आप यूटिलिटी से वो एसएमएस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ पे अगर आप अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए अगर आपके यहाँ पे शादी है और अगर आप शादी में किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हाँ ऑप्शनल है कि उस यूजर की मर्जी है उसको आना है या नहीं आना है। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आप इनवाइट हाँ कर रहे हैं, तो वो हाँ यूजर की डिपेंडेंसी को आना है या नहीं आना है। तो ये इस टाइप के जो एसएमएस है, ठीक है, जहाँ हाँ पे यूजर डिपेंडेंसी है कि उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो वाले टेम्पलेट मार्केटिंग में आएंगे, राइट। हाँ। एंड जो लास्ट वन ओटीपी है उसके लिए अलग ही सेक्शन बना हुआ है ऑथेंटिकेशन वाला, तो ओटीपी आप वहां से करवा सकते हैं सर। अच्छा। यस सर। हाँ, ओके ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। Um, Gaurav sir, are you there in a meet? Gaurav sir, एक्चुअली गौरंग सर का एक क्वेश्चन था कि हम्म। आपका रीसेलर पैनल अवेलेबल है या नहीं और प्राइसिंग क्या है. So I'm just ओके। asking that Gaurav sir is there in a meet or ये- not.
Yeah. I'm here. Yeah, Yeah. sir. Yeah. Sorry for the delay, sir. But yeah, Sorry for we myself. My mic was on no, mute actually, so no, I can't speak. Hmm. no worries, sir. My head will be giving you the solution for it. Okay. So actually, we have options where Okay. you can connect as a reseller, fine, and you can create your account and you can create under user in your reseller panel, and you can sell the services, sir. Right. And And for one the more. Okay, yeah. one more question regarding how much time it will take to create a blue tick account. Means it will take 15 days, 10 days, because client when we Mhm. go for deal, client Yeah. ask for definite time, means we Uh, want in 15 days. So Necessary blue tick is there any users. actual time, means within 1 week or 10 days or 15 days, or I have to explain them yeah. the Yeah. process is by Meta? Yeah, actually, for the blue ticks are actually it is depend on the Meta that actually Okay. Meta checking the quality of the application. Like you know that they now the nowadays many of the users using the verify WhatsApp. Fine. So actually Meta checking the things that if the user is a genuine user and is sending the proper SMS and maintain all the things which have a Meta policies, right? Okay, So okay, got it, got it. if the user follow all the things, so they can get the blue tick option in 5 days, well, sir. Because why I'm asking, because I'm Yeah, yeah, constantly receiving from WhatsApp marketing team yeah. here in Mumbai that we will Fine. provide you within 1 day. You will get your blue tick at around 15,000, 30,000. So uh, this type of offer I'm getting. So I'm very curious. It is possible in 1 day to get a Yeah, blue tick? yeah. It is also possible in 1 day and 2 days as well. But in this process, as I told you that you needed three things like your Quality. first is quality, and second is the articles on the genuine news Yes, yes, publisher. yes, yes. So it will be possible. Sir. It will possible. And one last question: what will be overall charges? Means for Blue Tick and Hmm. the platform of WhatsApp Okay. SMS Fine. from Meta. Actually, I can know about the meta charges, but for the other things like reseller or the other plan detail, you need to Okay, communicate okay. with your account manager because I am from the support, and the No, 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 no meta problem. Got it. charges for the marketing right now is 78 paisa, and if you go for the utility and authentication, so it is 12 paisa, sir. 12 paisa. Okay, Yeah, got it, got it. Thank you very much. Including GST, sir? yeah, including GST, sir. Okay. हाँ, Yeah. ओके Okay, सर thank you. सर एक सवाल था और मेरा Yes, sir. Yes, sir. ये एजेंट जो हम बनाते हैं जैसे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय लोग हैं जिनका Fine. एजेंट तो इसमें एक अलग यूजर आईडी पासवर्ड भी बनता है क्या एजेंट के लिए यस सर लाइक जब आपका जो अकाउंट रहेगा सर वो मेन अकाउंट रहेगा राइट हाँ यू आर द एडमिन ऑफ द पैनल राइट एंड जब आप एजेंट बनाएंगे ठीक है तो एजेंट के पास में भी अपना एक यूजर नेम एंड जो पासवर्ड है वो जाएगा ठीक है जिससे क्या होगा कि एजेंट अपना खुद का लॉगिन करेंगे और जो एक्सेस आपने उनको दिए होंगे कि लाइक एजेंट चैट कर पाएंगे तो वो सिर्फ चैट ही चेक कर पाएंगे एजेंट ठीक है जहाँ पे तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है एजेंट के बाद में अलग से पैनल तो जाएगा जो वो लॉगिन कर पाएंगे बट उनको क्या क्या ऑप्शन देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर अच्छा यस सर ओके ओके और सर ये हर एक व्यक्ति के लिए जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है हर क्लाइंट को लगेंगे ना यानी जैसे मैं मेरा खुद का अभी तो फ्री है अभी कॉम्प्लीमेंट्री है मुझे कोई फाइन एएमसी नहीं लग रहा है यस तो ये फिर अच्छा ये भी असर कब तक कंटिन्यू रहेगा जैसे अभी प्लेटफॉर्म चार्जेस तो कंपनी डिसाइड करेगी समझो ये जो भी हाँ आपका अकाउंट मैनेजर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे यस हाँ तो ठीक है ओके सर हाँ, ठीक है थैंक यू सर यस और कोई क्वेश्चन सर किसी का सर एपीआई इंटीग्रेशन के लिए सपोर्ट कैसा रहता है सर अभी? सर सपोर्ट अवेलेबल है सर आपको किसी भी तरीके का अगर कोई इशू है राइट तो सपोर्ट अवेलेबल है ठीक है आप कम्युनिकेटेड कर सकते हैं और जहाँ तक एपीआई का है
तो एपीआई का सर हमने वैसे भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दे के रखा हुआ है, पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी एपीआई मिल जाएगी हर टाइप की जो आप साइन करना चाहते हैं, तो आप और सर कॉन्फ़िगरेशन कर एक सकते हैं सर। सर अगर एक एक अकाउंट जैसे वेरीफाई किया तो उससे हम्म। दो चार क्लाइंट का अकाउंट वो कर सकते हैं क्या वेबसाइट, एक ही वेबसाइट को ही रहता है, कैसा रहता है? सर ये जो वेरी मेटा का अकाउंट है, ठीक है, ये चलता है बिजनेस के ऊपर। लाइक जैसे कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसमें अगर आपने कोई एक नंबर ऐड किया, ठीक है, और अगर आप चाहते हो फॉर सेम पर्टिकुलर बिजनेस अगर आप कोई सेकेंड नंबर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट नंबर आप नंबर का नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे वेबसाइट में जैसे अपन यूटिलाइज करते हैं ना इंफॉर्मेशन के लिए, कोई जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है अपना, यस। जैसे सीआरएम सिस्टम है अपना पास, है ना, हम्म। सीआरएम का प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है। तो उसमें जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो अपने बिजनेस के लिए जाएगा तो अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाएगा, तो हम्म। उसमें सीआरएम के अपने प्रोडक्ट में अपन यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या मतलब आपका क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि आपका एक वेबसाइट है एंड वहां पे आप जैसे कि नॉर्मली चैट ऑप्शन होता है वेबसाइट पे, तो आप चैट व्हाट्सअप। का नहीं बोल रहा हूँ, चैट का नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं समझ नहीं जैसे पाया। प्लान एक्सपायरी हो जाता है तो मैसेज जाता है, या हम्म। रिन्यूअल करना है तो मैसेज जाता है ना। हाँ हाँ। तो हमारा जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर है अपने ठीक पास, है। ठीक है, तो वो हमारा है और हम क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है। तो वो फाइन। मतलब इंफॉर्मेशन अपने एक सिंगल अकाउंट से चले जाएगा ना, एपीआई से। हाँ समझ गया मैं, आपका आपका जो ईआरपी उससे आप चाह रहे हैं कि जो भी आपके सपोज जो भी एसएमएस आपके पैनल के थ्रू जाते हैं, राइट, तो वो हर यूजर के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो उसमें ठीक। सर, हाँ तो उसमें सर क्या होता है ना कि ये अवेलेबल है अगर आप आपका ही अकाउंट अगर करवा रहे हैं वेरीफाई, उसमें अगर आप टेम्पलेट अप्रूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, बट उसमें क्या होगा कि जो एसएमएस यूजर के पास में रिसीव होगा, जो एंड यूजर होंगे, ठीक है, तो उनके ठीक पास है। में जो ब्रांडिंग जाएगी, ठीक है, वो आप ही के अच्छा। बिजनेस की जाएगी। मतलब जैसे कि सपोज अगर आपका आपका एक कोई बिजनेस नेम है एबीसी एंड अदर जो आपके यूजर्स हैं उनका जो बिजनेस नेम है वो एक्स वाई जेड है, बट अगर बिलिंग बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो जो यूजर है उनको एक्चुअली एबीसी जाएगा जो कि आपका रहेगा सर, ठीक है। तो वो जो बिजनेस पर्पज से जो यूजर चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपके यूजर चाहेंगे कि उन्हीं के नाम से जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा वो अच्छा। सिंगल हैंडेडली रहेगा सर। सर यस। एक और सवाल था मेरा। हम्म। सर मैं ये बोल रहा था जैसे हमारा एड एजेंसी है तो एड एजेंसी में जैसे हम तो लोगों का प्रमोशन करती है, तो ठीक है। इसमें जैसे जो टेम्पलेट ही है वो हम्म। क्लाइंट का लेके हम उसमें कुछ भेज नहीं सकते क्या? जो चीज हमको ऐसा लगता है कि हमारे आईडी से भी हम भेज सकते हैं, ऐसा भेज सकते हैं क्या? यानी भले वो मैसेज मेरा प्रचारक के नाम से ही जा रहा है, लेकिन हम्म। फिर ठीक है, मुझे इसमें क्लाइंट भी जोड़ना, ये बात सही है, हम्म। लेकिन कोई कोई क्लाइंट का जैसे अगर ऐसा है कि भाई मैं उसका टेम्पलेट अप्रूव कर लूं मेरे इस पे, तो ऐसा हम्म। पॉसिबल है क्या? यानी सर देखिए, अगर आप मतलब मेटा के पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर अगर देखें तो हर बिजनेस का अपना खुद का मेटा अकाउंट होना चाहिए अगर उन्हें प्रमोशन या कुछ भी करना है तो, राइट। अब आपका जो प्रोसेस है जिसमें आप कहना चाह रहे हैं कि सपोज आप आपका ही वेरीफाई करवाएंगे एंड उसके थ्रू अगर आपके जो एंड यूजर है उनका प्रमोशन अगर आपको सेंड करना है, ठीक है, तो उसमें सर आपको यूजली ब्रांड नेम तो आप ही का जाएगा वहां पे। आप अगर आप चाहें तो वेरिएबल का आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का ऑप्शन मेटा देता है जिसमें आप जो आपके यूजर है उनका ब्रांड नेम आप मैसेज के अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है। यस, बट उसमें ये रहेगा कि लाइक जो जेन्युइन प्रोसेस है वो यही है कि आप बिजनेस मतलब जिसका बिजनेस है वही प्रमोशन कर रहे हैं। उसमें क्या आपका जो रेटिंग होता है वो डाउन होने के चांसेस होते हैं, या फिर अदर जो भी चेकिंग करता है मेटा उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको में भी शायद कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बाकी और हाँ वैसे ये इससे पॉसिबल है। हाँ, वैसे प्रमोट भी नहीं करना है क्योंकि मेन तो सेल्स नहीं आएगा उससे। हाँ। हाँ वही वही कह रहा हूँ, सेल्स हाँ। आएगा क्योंकि वो अगर वो रिप्लाई करेंगे तो भी वो आप ही के पास जाएगा, तो इनडायरेक्टली जो आपके एंड यूजर है उनका बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ ये कि उनका एक एसएमएस चले जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके। Yes, sir. Is it compulsory to send marketing messages? नहीं सर, कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा सेंड कर सकते हैं। Okay, so सर इसमें Bluetooth के रीसेलर और व्हाइट लेबलिंग कुछ का ऑप्शन रहता है क्या? हाँ ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सर आपको। अगर मार्केटिंग मैसेजेस ना सेंड करे तो ब्लूटिक मिल जाएगा ना कि मिल जाएगा उस मिल पे, जाएगा, हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि वो तो मेन आपका। फोकस हमारा ब्लूटिक ही है। हाँ मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। यस सर।
Anybody have any more doubts, or we can wrap up the session? Fine, sir. Thank you for joining the meeting, sir. Yeah. If anybody have any more queries, so we can stay. Otherwise, we can wrap up the session for today. No, ma'am. Yeah, okay. Okay. Thank you so much, Yeah, thank you, everyone, sir. for joining and giving us your precious time. Thank you so much. Yeah, thank you.